कंपटीशन ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का जो एग्जाम 2017 में हुआ था उसका क्वेश्चन। What is the size of particle to which law of classical physics is applied? When size of particle decrease is classical physics which is based on Newton law of motion and Newton law of gravitation. Newton law of gravitation is breakdown. When size of particle is less than 10 to power minus 7 meter. Therefore, option 2 is correct. Which is option is correct about the wheel of a car moving on the static law of friction. F equal to according to law of friction. F equal to mu n, where mu is coefficient of friction. Mu is statics, therefore kinetic and rolling. Static friction is greater than other, and rolling friction is very small. Therefore, static friction is maximum than other. Which relation? Speed of sound in gas. The speed of sound is equal to V equal to gamma P rho. P is pressure, rho is gas, rho is Cp by Cv, and rho is density. For given gas, gamma is constant. Therefore, V is proportional to 1 by rho. Therefore, V square is proportional to 1 by rho. Option first is correct. Wavelength in vacuum. Color of light is function of wavelength. When white light pass through the prism, white light break into 7 colors: violet and red, yellow. The bending of ray, this is called dispersion. The bending of ray inversely proportional to wavelength. Therefore, violet have minimum wavelength. This is a wavelength of red. This is a green ray. The endoscope is used looking inside body, which is made of convex lens. Endoscope which made of convex lens. Which is the largest night in North Hemisphere? December 22 is largest night को हम बड़ा दिन कह के जानते हैं। 21 जून को जून 21 is smallest largest day, and 21 March and 22 July has equal day and night. The correct option is 2. What happens light enter the other medium? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, मीडियम 1 मान लेते हैं ये एयर है और दूसरा मीडियम ही ग्लास, तो अगर रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। इसमें वेलोसिटी जो है v है, c है होता है, इसमें वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी इन वैक्यूम equal to frequency in medium, but wavelength in vacuum is greater than wavelength in medium. Velocity in vacuum c is greater than v. तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वेलोसिटी घट जाता है, वेलोसिटी डिक्रीज, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ व्हेन रे इंटर इनटू रेयर टू डेंसर मीडियम डिक्रीजेज। लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन रहता है, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज ओनली डिपेंड ऑन सोर्स, यह केवल सोर्स पर निर्भर करता है। द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड Fahrenheit, C equal to 5 but equal to F equal to 32/9, तो C equal to 5 है, C हमको निकालना है, F दे दिया है 5 -32
32/9। तो C इक्वल टू 5 दिया हुआ है -32/9। तो C5 इक्वल टू -27/9 implied that C equal to -15। ऑप्शन 4 is correct। भारतीय रिलेशन बिटवीन द फोर्स F एंड द कूलम लॉ कहता है, कूलम लॉ, अगर दो चार्ज है, यहाँ Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है और डिस्टेंस R है, तो इसके बीच में जो फोर्स होता है F इक्वल टू KQ1Q2/R²। Therefore F is proportional to 1/R²। What is true about the magnetic susceptibility? Magnetic susceptibility ferromagnetic material is greater than 10,000. Paramagnetic material is 0 to 1, 0 μs 1. Diamagnetic material is less than 0. तो मैग्नेटिक मटेरियल का फेरो बहुत अधिक होता है, 10,000 से अधिक होता है। ये ऐसा प्रॉपर्टी है जो किसी वस्तु को बताता है कितना जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा। विच ऑफ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, देखिए मीथेन में इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 का मतलब होता है s ऑर्बिटल एंड p, एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल मिलके बनाता है। जैसे कार्बन में होता है इलेक्ट्रॉन, कार्बन में होता है 2 इलेक्ट्रॉन s में रहता है, sp है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। तो इसमें मीथेन में s और p मिलके हाइब्रिडाइज करता है, s ऑर्बिट एंड p ऑर्बिट कोलाइड करता है। 3p, क्योंकि s का वैल्यू हमेशा 1 होता है। p का 3 तरह का होता है, px, py एंड pz। जब sp जब तक कोलाइड करता है तो 4 ऑर्बिट इक्वल बनता है। इसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा sp3 में। sp2 में जब होगा तो डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। देखिए जो हमारे पास है इसमें है, देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइज होगा, sp2 इसमें sp3 में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। अब देखिए इसमें हमारे पास है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन हो। हाइड्रोजन बंध में 2 ड्यूटेरियम मिलके, ड्यूटेरियम हाइब्रिड जिसको हाइब्रिड हाइड्रोजन कहते हैं, D एंड D मिलके 1,2,1,2 हैवी हाइड्रोजन होता है, हीलियम बनता है, हीलियम 2,4 एंड रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो हाइड्रोजन बम में यही रिएक्शन होता है। इसका मतलब 2 न्यूक्लियस मिलके, 2 एटम मिलके 1 एटम बनाता है, इसलिए संलग्न कहते हैं, न्यूक्लियस संलग्न। ऑक्सीडेशन नंबर बाय डेफिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन F is always -1। तो -1 फ्लोरीन का होता है और किसी का नहीं होता है। किसी भी पदार्थ के एक मोल में किसी का 1 मोल में अगर कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ कंपाउंड मॉलिक्यूल्स की संख्या जो होगा, मॉलिक्यूल्स की संख्या होगा एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। Na एवोगाड्रो नंबर है जिसका वैल्यू होता है 6.10⁻23। लेकिन परमाणु की संख्या सीधे 1 मोल कार्बन में 3 गो परमाणु है तो 3 गुना हो जाएगा। इतना तो मॉलिक्यूल की संख्या होगा, लेकिन इसमें 3 परमाणु, 1 कार्बन का 2 ऑक्सीजन का, इसका मतलब इसका 3 गुना हो जाएगा। तो 1 मोल कार्बन में जो है मॉलिक्यूल्स हो जाएगा 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हुआ। 1 मॉलिक्यूल्स में देखिए कार्बन में है 1 मॉलिक्यूल्स है CO2, तो 3 एटम है, एटम की संख्या इसमें 3 है, 1 कार्बन का 2 ऑक्सीजन का 3 है, तो एटम की संख्या हो जाएगा 3 × 6×10⁻23 इक्वल टू 18 × 10⁻23 एटम। मतलब 3 से गुना हो गया, इसलिए 3 ग्राम परमाणु कहलाएगा, 3 ग्राम परमाणु कहलाएगा, क्योंकि 1 एटम में 3 गो एटम है, इसलिए 3 ग्राम परमाणु की संख्या कहेगा तो इतना होगा, ऐसे 3 ग्राम परमाणु कहलाएगा। देखिए Kp जो होता है, Kp इक्वल टू Kc इंटू RT का पावर डेल n, जहाँ डेल n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए इसका 2 मॉलिक्यूल्स है,
आई भी 1 1 2 हुआ, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 हो गया। तो Kp इक्वल टू हो जाएगा Kc इंटू RT का पावर 0 बराबर Kp। तो Kc और Kp बराबर होगा। हाइजेनबर्ग कहते हैं कि जो डेल P एंड डेल X चेंज इन मोमेंटम एंड चेंज इन पोजीशन का जो हमारे पास होगा h/4 का कम से कम एरर होगा। इसका मोमेंटम सही ज्ञात कीजिएगा तो इसको ये जो दिए थे हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल कहलाता है। हाउ मेनी वैल्यू, देखिए कोई भी 4 तरह का क्वांटम नंबर होता है। कोई अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर कहता है जो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर घूमता है, तो 2 तरह से घूम सकता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर को हम लिखते हैं हाफ और हाफ माइनस हाफ। 4 क्वांटम नंबर होता है। तो स्पिन क्वांटम नंबर 2 तरह का होता है, क्लॉकवाइज स्पिन क्वांटम नंबर आर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 तरह का स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं। देखिए फास्फेट का जो होता है FeA3, इसका वैलेंसी 3 होता है, इस पर 3 माइनस चार्ज। अब H लग गया, HPO3 में एक कम गया, तो इसका जो हुआ -2 हुआ। इसका मतलब है मेटल का भी जो होगा, मेटल का भी +2 होगा। क्लोरीन का -1 होता है, क्लोरीन का -1 होता है। तो मेटल जब टकराएगा, इसका -2 है तो 2 क्लोरीन एटम से कंबाइन करेगा, इसलिए MC2 हुआ इसका। Which person is hungry? He first thing person is glucose. Which of the not protein? Lymphocyte is not protein. Which of following ion is not present? ब्लड में हमको पाया जाता है मुख्य रूप से आयरन, सोडियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन एंड कैल्शियम आयन ब्लड में पाया जाता है, लेकिन कॉपर ब्लड में नहीं पाया जाता है। इस सब का काम है ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करना। Which of following secrete एस्टेरॉइड? गर्भाशय में बनता है एस्टेरॉइड। देखिए सेल का जो स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार होता है, बीच में सेंटर होता है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहता है। यही काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का ही काम है कि एनर्जी को बदलना। वायरस में दोनों नहीं रह सकता, तो RN रहेगा चाहे DN रहेगा वायरस। मिल्सन ऑफ साइड पार्टिकल रेंज इज नियरली 100 to 1000। इसमें 5 तरह का आइसोमर है। ब्लड ग्रुप ऑफ बोथ पर्सन इज AB। अगर AB है, जो कहता है AB इन्वर्सल एक्सेप्टर है, एंड O है जो यूनिवर्सल डोनर। AB के माता पिता वाले में तीनों हो सकता है AB O। लाइन जो अगर इस समुद्र में लाइन कनेक्टेड इक्वल डेप्थ, सी में जो है स्मूथ नहीं, जहां तहां उठा हुआ है, कहीं दबा हुआ कहीं होते, तो सेम हाइट वाला मिलाने वाले लाइन को जो कहते हैं डेप्थ, सेम डेप्थ पर मिलाने वाले लाइन को कहते हैं आइसो